Good morning, students. Welcome back to the online class. Today we will read the next chapter, that is the bear story. So I will tell you the summary of this story, what was in this chapter, right? So let's start the chapter. Once there lived a lady on the border of a big forest. She found a bear cub in the forest. It was starving. Starving means वो भूखा था, right? भूख लगी थी. It was quite helpless. The lady had to bring it up on the bottle. The cook helped her. और जो लेडी थी वो उसे कैसे लेकर आती हैं? बॉटल से पालती हैं और बॉटल में दूध पिला के पालती हैं, उसे लेकर आती हैं एंड जो कुक था उनका वो उन्हें हेल्प करता है. After many years, it grew up a big and strong bear. और बहुत सालों बाद it grew into a strong and big and strong bear. However, he was most amiable bear. Amiable means the one who is very loving, right? Who is very friendly. वो बहुत ज़्यादा friendly भी था और बहुत ज़्यादा loving था. He harmed neither man nor beast. वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता था. There were 3 mountain ponies in the stable. Ponies means a small horse. I have written here as well. Ponies means a small horse. Even these ponies did not feel frightened when walked into the stable. He also looked amicably at the cattle. और वो बहुत प्यार से सभी को देखता था, इवन टू दी हॉर्स और टू दी कैटल्स, और किसी को भी उससे डर नहीं लगता था. He also the children used to ride on his back. और जो बच्चे थे वो उसकी पीठ में राइड करते थे. They had also been found asleep in his kennel between his 2 paws. They pulled his ears and teased him in every way. He did not mind it all, right? There were 3 dogs who used to play with the bear and they used to sleep. You can see here in the picture, and they used to sleep in the between the paws of the bear as well. और bear उनको कुछ भी नहीं करता था. The thing bear used to eat, the bear ate the same food as the dog. He ate what he used to eat. He used to eat bread, porridge, potatoes, cabbages and turnips. जो डॉग खाते थे वही बियर भी खाता था. And you know, बियर इतना बड़ा होता है, so he has a very good appetite, right? He has a very good means अच्छा खाना वो खाता था, ज़्यादा खाना खाता था. He used to see with wistful eyes at the apples and eat them. और उसे क्या पसंद थे? He used to see apples. वहाँ पे एप्पल्स का भी पेड़ था जिसे वो देखा करता था और उसे वो खाने बहुत पसंद थे. He had also been taught not to touch the beehive, right? He was told not to touch the beehive. Beehive, you understand? He was not allowed to touch the beehive. What is the meaning of beehive? Beehive means मधुमक्खी का छत्ता, right? He was once put on the chain for 2 days when he had touched the beehives. एक बार उसे 2 दिन तक चेन से बांध के रखा गया क्योंकि उसने beehive को टच कर दिया था. Otherwise, he was chained only at night. और उसे कब बांधा जाता था? रात के समय उसे चेन से बांधा जाता था और एक संडे को, राइट? 2 समय उसे बांधा जाता था. One was on Sunday and one was at during the night. और पूरा दिन वो खुला रहता था. Like a dog, a bear also does not like to be chained. जैसे कुत्तों को पसंद नहीं होता है चेन से बंधे रहना, in the same way, bear also did not like to be chained. So जो लेडी थी जो उसे लेकर आई थी, जो उसकी मालकिन थी, what she used to do, every Sunday she used to visit her sister, and her sister lived on the other side of the mountain, right? Mountain lake, and it was not safe to go with a bear through the forest. So on Sundays the bear was chained the whole afternoon. As I told you, bear को पूरे दिन क्या करा जाता था? संडे के दिन उसे चेन से बांधा जाता था. On Sunday, while walking through the dense forest, she found the bear following her.
एक बार जब वो संडे को जा रही थी, अचानक से उन्हें बियर ऐसा लगा कि जो बियर है उनका पीछा कर रहा है, एंड द लेडी वॉज वेरी एंग्री। एंड वेन जब वो पीछे मुड़ती हैं, वो देखती हैं कि जो उनका बियर था वो ही क्या हो गया था, उनके पीछे आ रहा था, राइट। एंड शी गॉट वेरी एंग्री। शी डिड नॉट इवन वॉन्ट टू टेक टू हिम टू कम विद हर, नाइदर शी वॉन्ट टू गो टू बैक। अब वो क्या करती हैं, ना ही उसे, अब वो रास्ते में, आधे रास्ते में पहुंच गई थी, ना ही वो उसे अपनी सिस्टर के वहां ले जा सकती थी और ना ही उसे वापस घर तक छोड़ सकती थी। तो वो उसे बहुत बुरा डांटती हैं और उसे बोलती हैं, उसे किससे मारती है, अपनी अम्ब्रेला से मारती हैं और बोलती हैं कि वाई यू आर नॉट ओबेइंग मी, राइट। एंड देन व्हाट शी सॉ दैट शी हैज गिफ्टेड हिम अ न्यू कॉलर। जो उनके गले की पट्टा होता है वो नया कॉलर लेकर आई थी, जो बियर था उसने वो भी खो दिया था। यू कैन सी बियर इज फॉलोइंग हर। देन व्हाट शी डिड, शी हिट द बियर विद हर अम्ब्रेला, की जो अम्ब्रेला होती है उनकी वो दो पार्ट में टूट जाती है। द अम्ब्रेला नेम गिवन, यू कैन सी हियर पैरासोल, राइट, दैट मीन्स अम्ब्रेला। एंड सो जो बियर था, ही गॉट वेरी अपसेट, देन ही वेंट बैक टू दी होम। वो चुपचाप क्या करता है, वापस घर चला जाता है, राइट। द लेडी कम बैक होम इन द इवनिंग, शी फाउंड द बियर लुकिंग वेरी सॉरी फॉर हरसेल्फ। अब वो जब वो घर आती हैं वापस, रात शाम को घर आती हैं, शी इज द लेडी एंड दिस इज कुक। ये कौन है, उनकी कुक है, एंड दिस इज द बियर। तो वो देखती हैं कि बियर जो है वो बहुत सैड है और बहुत सॉरी फील कर रहा है। इट वॉज सो बिकॉज ही हैड बीन सिटिंग देयर दी होल डे, फॉर द होल डे ही वॉज सिटिंग इन दिस पोजिशन। The lady was still very angry. She began to scold the bear. She said that he would be chained for 2 more days as punishment. और लेडी अभी भी बहुत गुस्सा थी दिन में से। अब वो बोलती है, मैं बियर को अब तुम्हें 2 दिन तक बांध के रखूंगी। और देन द कुक हर्ड द लेडी एंड रश्ड आउट फ्रॉम द किचन। जैसे वो ये सुनती हैं, जो कुक थी वो बाहर दौड़ कर आती हैं, and she loved the bear as her own child. वो उसको, बियर को क्या करती हैं, जो कुक हैं वो भी बहुत प्यार करती हैं अपने बच्चे की तरह। द बियर, तो जैसे वो सुनती हैं कि जो ये लेडी है बियर को डांट रही है, जो उनकी मालकिन है बियर को डांट रही है, तो वो जल्दी से किचन से बाहर आ जाती है, राइट। एंड क्या बोलती हैं कि शी आस्क्ड द लेडी टू ब्लेस हिम इंस्टेड ऑफ स्कोल्डिंग हिम। वो बोलती हैं, आप इसे प्यार करो या इसे दुआ दो, इसे डांटने के बजाय। द बियर, शी सेड, हैड बीन सिटिंग देयर ऑल द डे एज मैक एज एन एंजल। वो क्या बोलती हैं, पूरे दिन बियर जो है वो ऐसे ही बैठा हुआ है, ठीक है, विदाउट मूविंग। वो चुपचाप ऐसे ही बैठा हुआ है पूरे दिन तक और एक अच्छे बच्चे की तरह उसने बिहेव करा है। It was then the lady realized she had met another bear in the forest. That means जो उनको बियर मिला था फॉरेस्ट में वो दूसरा बियर था, क्योंकि ये जो बियर है ये पूरे दिन ऐसे ही बैठा है। She realized, वो लास्ट में रियलाइज करती हैं कि जो उनको फॉरेस्ट में बियर उनका पीछा कर रहा था, that was not her bear, right? This was the twist in the chapter. लास्ट में उन्हें रियलाइज करती हैं कि जो उनको बियर मिला था फॉरेस्ट में, दैट वाज अनदर बियर, राइट। सो दिस वाज अ स्टोरी, द बियर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।